Now, viewers, big breaking news: a Maoist with the top Maoist, this top commander of Maoist terrorism, a bounty of 1 crore on his head, has been neutralized by our forces. Central Committee member Gautam alias Sudhakar has been killed in police Maoist encounter, viewers. So another big win for the forces. End game Maoism, end game Red Terror. Crackdown against Red Terror in the country continues. Another top Maoist commander has been killed in Chhattisgarh. And remember, viewers, this is just adding to the list of all those when the bound. In fact, my colleague Akhil is joining us live on the broadcast for more. Akhil, tell us more about this man, Sudhakar, the top Maoist who has been now eliminated by our forces. Well, absolutely, Rakshita. If you see another massive blow to the Maoist movement in the southern region of Chhattisgarh, because what we have seen that early this very morning, the intelligence team has gathered some input that there were movement of some Maoists in Bijapur, Indravati area. After that, what we have seen that a joint operation team was sent inside the Indravati National Park area, which include the DRG team as well, the STF team as well, and the Cobra unit of 210 battalion were basically sent inside that domain. And what we got to learn that in this very incident, if you see, a senior commandant level leadership has gone, because if you see during this operation, this operation which basically went for approximately 8 to 9 hours, and earlier what we have seen that in the southern region, if you see, not only this very incident in the Sukma region as well, in the Kondagaon region as well, if you talk about another region which includes Narayanpur and Bastar region. So in this southern belt of Chhattisgarh, what we have seen that this person is the third most wanted person who has been recently neutralized by our security forces in a successful attempt. Back to you. Right. In fact, Bharat also joins us live on the broadcast right now. He's in Chhattisgarh. I believe he is right there and around the. Yes, he's in Chhattisgarh. Bharat, हमें बताएं कितनी बड़ी सफलता है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पुलिस को जानकारी मिली थी, उस जानकारी के अनुसार जो पुलिस की टुकड़ी है उस पूरे इलाके पे निकली थी, जिस इलाके पे बड़े कैडर के माओवादियों की मौजूदगी थी। छोटे मोटे नक्सली नहीं, सीसीएम यानी सेंट्रल कमेटी मेंबर के जो पद पे काबिज है, उनकी मौजूदगी उस इलाके पे थी। 50 लाख का इनामी नक्सलियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। एक बड़ी सफलता देखी जा रही है। हम एक्सक्लूसिव तस्वीर उसकी दिखा रहे हैं, देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में कि किस तरीके का हालात उसको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए 31 मार्च 2026 तक जो डेडलाइन तय किया गया है, उसके तर्ज पे ऑपरेशन चलाई जा रही है। बीजापुर के नेशनल एरिया पार्क में इनकी मौजूदगी थी। छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े कैडर की अगर बात की जाए, यानी सुधाकर की बात की जाए या फिर अलग अलग जो है देवा की बात की जाए या फिर पापाराव की बात की जाए, बड़े बड़े नक्सली थे उस इलाके पे मौजूद थे, जिसके तर्ज पे एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा की ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन है उस इलाके पे निकाला गया। इस ज्वाइंट ऑपरेशन पे पुलिस और माओवादियों के बीच में एक लगातार जो मुठभेड़ है वो देखने को मिल रही थी। घंटों बीत रहे थे, भीषण मुठभेड़ जो है वो चल रही थी। इस मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक तरीके से जो 50 लाख का इनामी नक्सली जो था वो ढेर हुआ है। जी यस भारत बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरह से ये जो लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो ये बड़े बड़े माओवादी हैं उनका खात्मा हो रहा है। और ख़ासकर ये जो प्लान के तहत किया गया है, हमने देखा है कि इस पूरे क्रैकडाउन में एक अहम चीज़ रही है कि किस तरह से जिन पर भी बड़ी बड़ी बाउंटी अनाउंस हुई है उन सबका खात्मा हुआ है। अगर आप कुछ समझा सकें किस तरह से ये जो पहल है वो चलती आई है, जो बड़े बड़े जो नाम हैं, इनके कमांडर हैं, इनके जो आका हैं, उनको किस तरह से पकड़ रही है इन बड़े बड़े इनाम का ऐलान करके सिक्योरिटी फोर्सेस। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की सरकार आने से पहले बीजेपी ने एक दावा किया था 31 मार्च 2026 तक में माओवाद को समाप्त कर देंगे। ये एक स्लोगन थी जिसके तर्ज पे जो माओवादियों के खिलाफ एक तरीके से जो विरोध है वो देखने को मिला था। वही अगर बात की जाए बीजेपी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद सरकार का सबसे बड़ा ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ बस्तर में देखने को मिल रहा था। बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र यानी ट्राइबल इलाका है। ट्राइबल इलाके पे बस्तर के अधिकांश जो लोग हैं वो आदिवासी बहुल क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। बहुत से ऐसे नक्सली हैं जो
आदिवासी से ताल्लुक रखते हैं। माड़वी हिड़मा की अगर बात की जाए, जो पूर्ववर्ती और टेक्लोगुड़म में रहने वाला था, वहां का वो निवासी था, वो भी एक आदिवासी नक्सली बताया जाता है, जिसको लेकर अलग अलग तरीके से दलील जो है वो पेश की जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से फोर्स की मूवमेंट हो रही है बीजेपी सरकार आने के बाद, एक तरीके से माओवादियों की जो रीढ़ है वो टूटते हुए नजर आ रही है। सीसीएम के पद पे काबिज वाला नक्सली अगर ढेर हो रहा है, जरा सोचिएगा कि नक्सलियों की क्या हालात हो रही होगी। क्योंकि सीसीएम यानी सेंट्रल कमेटी ऑफ मेंबर, केंद्रीय जो रिजर्व होते हैं, ये वो नक्सली होते हैं जो हुकूमत करते हैं, जो रणनीति बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जिसके तर्ज पे जो निचले कदर के नक्सली होते हैं वो घटनाओं को अपने अंजाम में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। अगर जो रणनीति बनाते वही नक्सली अगर टूट रहे हैं, वही नक्सली अगर ढेर हो रहे हैं, तो जरा सोचिए कि माओवादियों की स्थिति कैसी होगी। जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बस्तर की अगर बात की जाए, बस्तर कई वर्षों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। वहीं बात की जाए बस्तर के ऐसे इलाके, जिस इलाके में अबुझमाड़ की अगर बात की जाए, अबुझमाड़ में एक बड़ा इनकाउंटर देखा गया था, वहां पे एक बसवर राजू को ढेर किया था। उसके बाद करेगुट्टा हिल्स की अगर बात की जाए, केजीएच, उस इलाके पे एक बड़ी ऑपरेशन देखने को मिली थी। अब बीजापुर की अगर बात की जाए, बीजापुर के नेशनल एरिया पार्क में सीसीएम यानी बड़े बड़े नक्सली थे, 50 लाख का नक्सली को पुलिस के जवानों ने ढेर किया। बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जी। बिल्कुल भरत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए व्यूअर्स। दैट्स द बिग अपडेट वी आर गेटिंग इन राइट नाउ। द क्रैकडाउन अगेंस्ट रेड टेरर कंटिन्यूज एंड अनदर टॉप माओइस्ट टेररिस्ट हैज बीन एलिमिनेटेड इन छत्तीसगढ़।